Okay, student. As we have already discussed, the magnetomotive force is basically equal to N into I. So, in the previous class, as we have already discussed in detail, the magnetomotive force is basically equal to N into I. I means current, N means total number of Number of turns. turns. So, as you can see in this code, this is the current and these are the total number of turns. Yes. We represent the total number of turns in N and the value and the current is I. So the multiplication N into I is called magnetomotive force. So this source is called magnetomotive force. So the second relationship of the magnetomotive force is, according to Ohm law, magnetomotive force is basically equal to flux Flux into reluctance. reluctance. So this point we have also discussed in the previous lectures, the relationship between magnetomotive force and the flux and the reluctance. Reluctance. So I hope this formula will clear all of the students as well. So now we will Yes. draw the graph between magnetomotive force and the flux. So first of all, we will draw the relationship between magnetomotive force and the flux. Let's suppose in the x-axis the value of the magnetomotive force, and in the y-axis let's suppose this is the parameter x flux. So now we want to find the relationship between magnetomotive force and the flux. तो सबसे पहले हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स का रिलेशन क्या होता है ये. So magnetomotive force is basically equal to N into I. So as we know, when the value of the current will increase, so when the value of the current will increase, then the value of the flux will increase as well. Increase. Because according to Ampere law, सर जी जी, ये ग्राफ किस किस के दरमियान बनाया? ये जस्ट हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं. अगर इस कोर में आप देखें तो यहाँ पे जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अम्पेयर लॉ, व्हेन द करंट विल अप्लाई देन द मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस, दैट इज द फ्लक्स विल प्रोड्यूस. तो अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं जब हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा. एज यू कैन सी इन दिस कोर, दिस इज द फ्लक्स. कोर के अंदर क्या है, बेसिकली हमारे पास फ्लक्स है ये. तो जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो करंट जब फ्लो करता है उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ये. वो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो हम एरिया डिफाइन करते हैं ये, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, फ्लक्स. तो अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जब हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट विल इंक्रीज, तो जब यहाँ पे हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ये, उस केस में क्या होगा, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. So this source is called, the total number of turns are N into I is called magnetomotive force. तो इसको हमने नाम दिया था magnetomotive force. So it means that when the value of the current will increase, because as we have already discussed, in case of current carrying conductor, magnetic field will produce in the around of conductor. तो जब करंट को हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. जब हम करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी. So based on these parameters, we can draw the relationship between the magnetomotive force and flux. तो इसका हम रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. So now when the value of the current will increase, जब हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इट मींस कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. इंक्रीज होगी. So let's suppose this is the behavior of the flux. अगर जैसे जैसे हम यहाँ पे करंट की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज. So this is the point number 1 of this graph. I hope इस कर्व का आपको पॉइंट नंबर 1 सब स्टूडेंट को क्लियर होगा ये कि पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारे पास, कि जब हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज. तो इसके अंदर किसी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट के अंदर तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ताकि इसी ग्राफ को आज हम आगे जाके सॉल्व भी करना है. तो क्या ये पॉइंट सब स्टूडेंट को क्लियर है यहाँ तक? यस सर. यस सर. ओके ओके. चलिए अपने माइक आप लोग ऑफ रखना. जब किसी भी स्टूडेंट का जब कोई क्वेश्चन हो आपका ये, तो किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो आपने डिस्कस करनी, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि हमें ये टॉपिक सब स्टूडेंट को अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है.
किसी भी अपना माइक ऑफ करना ताकि सबको क्लियर आवाज चाहिए। अगर कोई चीज ना क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप उसमें क्वेश्चन करके वो चीज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि एक एक पॉइंट सब स्टूडेंट को अच्छी तरह क्लियर हो, ताकि इजीली इसकी अंडरस्टैंडिंग सब स्टूडेंट को, इसको आप जाके हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने ये फ्लक्स को डिपेंडेंट एक्सिस में क्यों रखा है सर? देखिए, फ्लक्स को आप इसको एक्स एक्सिस में डिफाइन कर सकते हैं या इसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स को वाई एक्सिस में कर सकते हैं, आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसके अंदर। ओके सर, ठीक है, इसमें डिफाइन करना नहीं इशू हमारा, ये कि जस्ट हमें बिहेवियर फाइंड करना है। क्योंकि करंट की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। करंट हमारे पास क्या सोर्स है, ये तो इन जनरल हम क्या करते हैं, जो सोर्स होता है उसको हम एक्स एक्सिस में डिफाइन करते हैं। ये जो उस बेस पे हमारे पास सेकंड पैरामीटर आ जाता है, सोर्स की वजह से जो हमारे पास चीज जनरेट होती है उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे शो करते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी सोर्स होगी उसको हम हमेशा क्या करते हैं, उसको वाई एक्सिस के अंदर, सॉरी एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अदरवाइज इसको वाई एक्सिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई वो रूल नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये आर का क्या रोल है सर, फाई आर? और जस्ट हमारे पास एक ओम लाया, अभी हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, लेट्स सपोज इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बेसिकली हमें डिफाइन करता है जब फ्लक्स इस कोर में से फ्लो करे, लेट्स सपोज दिस इज द कोर, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कोर है ये, तो जो फ्लक्स है यहाँ पे कोर में से क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रही है। तो जब कोई भी चीज फ्लो करती है उसको हर उसके ऑपोजिट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होती है जो उसको अपोज करती है। ये जैसे हम अपनी एग्जांपल है, अगर हम अर्थ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये तो अर्थ हमें क्या करती है, अपोज करती है, ताकि हम उसमें मूव ना करेंगे। तो फ्लक्स को जो चीज अपोज करती है उसको हम नाम देते हैं रिलक्टेंस। तो ये आर ये शो कर रहा है, आर मींस द ऑपोजिशन ऑफ फ्लक्स, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बेसिकली रिलक्टेंस। क्योंकि जब फ्लक्स फ्लो करता है तो फ्लक्स एक मीडियम से फ्लो करता है, फ्लक्स कभी भी वायर से फ्लो नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक मीडियम है। फ्लक्स हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, ये मीडियम से फ्लो करता है। तो जब कोई भी चीज फ्लो करती है उसको हमारे पास ऑपोजिट क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है। ये उसको हमें क्या नाम दिया, ये रिलक्टेंस। सो द ऑपोजिशन ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। जिससे हमारे पास करंट के ऑपोजिट क्या रेजिस्टेंस है, ये द ऑपोजिशन ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये द ऑपोजिशन ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। आई होप कि ये पॉइंट सबको क्लियर होगा अभी। So this is the point number 1. When the value of the current will increase, then the value of the flux will increase according to Ampere law, because the relationship between the current and the flux is directly proportional. As you can see in this core as well, when the value of the current will increase, then the value of the magnetic field will increase. When the magnetic field increase, it means the overall flux will increase. अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम एक एरिया के अंदर डिफाइन करें तो उसको हम क्या नाम देंगे, फ्लक्स। तो फ्लक्स भी क्या है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, हमारे पास जो एरिया है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को हमने क्या डिफाइन कर दिया, फ्लक्स। सो आई होप दिस पॉइंट नंबर 1 विल क्लियर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन एट एनी पॉइंट यू कैन डिस्कस नाउ। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पॉइंट के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आई होप सो ये पॉइंट सबको क्लियर होगा इसके अंदर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, if we increasing the current continuously, अगर हम कंटिन्यूसली करंट की वैल्यू इंक्रीज करें तो उस केस में क्या फ्लक्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, या कुछ पॉइंट पे जाके फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगी ये। सो नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हमने अभी डिस्कस किया था। जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा ये। तो ये स्टार्ट में तो रिलेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्लक्स क्या है हमारे पास, इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एरिया, यहाँ पे स्कोर पे क्या है, बेसिकली हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लेस है या स्पेसिफिक क्या है इसके अंदर एरिया है। तो जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन जब हमारे पास कोर का एरिया क्या होगा, फील्ड होगा, कंप्लीट होगा ये, उस केस में क्या बिहेवियर होगा ये, अगर करंट को हम फर्दर इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्दर फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो उसकी एग्जांपल आप लेट्स सपोज कि हम कोई भी क्लासरूम की एग्जांपल ले सकते हैं। ये किसी भी क्लासरूम में लेट्स सपोज कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठने की स्ट्रेंथ है वो 50 है। 50 मीन्स कि हमारे पास वो फ्लक्स है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे स्टार्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, उनका रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। जैसे जैसे स्टूडेंट होंगे क्लास के अंदर वो क्या होंगे, सिट बैठते जाएंगे। ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास उसकी प्लेस क्या होगी, फील्ड होगी ये। उस केस में अगर करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा ये। जैसे क्लासरूम की एग्जाम्पल, अगर 50 की वहाँ पे स्ट्रेंथ है बेसिकली, अगर स्टूडेंट वहाँ पे हमारे पास 100 आ जाते हैं तो इट मीन्स कि 50 के बाद अगर स्टूडेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही तो हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा ये। तो सेम बिहेवियर क्या होता है, कोर का बिहेवियर होता है बेसिकली। कोर के अंदर जो फ्लक्स की क्या होती है, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा फ्लक्स उसके अंदर फ्लो
नहीं कर सकता ये। तो जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करते हैं तो स्टार्ट के अंदर फ्लक्स क्या करता है, मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है ये। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो चेंज आता है वो चेंज की वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। रिड्यूस क्यों होती है हमारे पास, अब कोर के अंदर जो प्लेस है बेसिकली वो प्लेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे फ्लक्स की प्लेस कम होगी, मीडियम कम होगा हमारे पास, जब फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम हो चुका है, यहाँ पे प्लेस कम है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे फ्लक्स के अंदर जो चेंज होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो चेंज अब ज्यादा नहीं होगा, चेंज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ये। अब इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा हमारे पास, एक पॉइंट पे जाके फ्लक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। उसकी रीजन क्या है कि जब हमारे पास कोर के अंदर लेट्स सपोज के यहाँ पे 0.05 हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम इसकी लिमिट है, इस एरिया की है। तो जब हम उसके अंदर फर्दर इंक्रीज करेंगे तो करंट को, तो फर्दर फ्लक्स वहां पे प्रोड्यूस इंक्रीज नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है कि एरिया जब कंप्लीट होगा, फिल्ड अप होगा, उसके अंदर फर्दर कोई चेंज नहीं होगा ये। तो जब फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा तो उस केस में हमारे पास करंट के इंक्रीज करने से जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा ये। जिससे हमने एग्जांपल अभी डिफाइन किया, लेट्स सपोज हम एक क्लासरूम की एग्जांपल लेते हैं ये। अगर उसके अंदर 50 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है बैठने की, अगर लेट्स सपोज स्टार्ट के अंदर 20 स्टूडेंट होंगे तो 20 वहां पे बैठ जाएंगे ये, इसके बाद 30 आएंगे तो 30 बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, जब क्लासरूम फील्ड होगा, जब कोर फील्ड होगी, उसके बाद हम स्टूडेंट को इंक्रीज भी करेंगे तो उसके अंदर फर्दर कोई चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि क्लासरूम क्या हो सकता है, फील्ड हो चुका है ये। तो सेम बिहेवियर क्या होता है, कोर का होता है बेसिकली। कोर के अंदर जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा, स्टार्ट में फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा ये। एक पॉइंट पे जाके जब कोर बिल्कुल सैचुरेट होगी, जब फील्ड अप हो जाएगी, फ्लक्स मैक्सिमम प्रोड्यूस हो चुका होगा, कोर के अंदर कोई फर्दर प्लेस नहीं होगी इसके अंदर, तो फ्लक्स के अंदर जो चेंज होगा वो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। उसके बाद हम करंट को इंक्रीज भी करते जाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो सेम बिहेवियर कोर का भी हमारे पास, जिस क्लासरूम का बिहेवियर है सेम क्या होता है, यहाँ पे कोर के अंदर वो पैरामीटर उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई this will be the relationship between the magnetomotive force and the flux. So there are three regions. At the start, the relationship between magnetomotive force and the flux is directly proportional. When the value of the current will increase, then the flux will increase at the start. After this, the change in flux is reduced. जैसे जैसे हम फर्दर करंट इंक्रीज करेंगे उसके बाद ये चेंज कम होता जा रहा है। उसकी रीजन क्या है बेसिकली, कि कोर अब फील्ड अप होती जा रही है, जो उसका एरिया वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फील्ड होने के करीब करीब है, इसलिए इसके अंदर जो चेंज है वो कम होना शुरू हो गया ये। आफ्टर दिस व्हेन द कोर इज फुली फील्ड, देन द चेंज इन फ्लक्स विल अप्रोक्सीमेटली बी 0। जब उसके बाद जब कोर कंप्लीटली फील्ड होगी तो उसके बाद चेंज क्या होगा फ्लक्स के अंदर, अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 0 के करीब होगा ये। सो देयर आर 3 रीजन्स ऑफ दिस कोर। I hope the relationship between current और magnetomotive force and the flux will be clear all of the students. अगर किसी को इस ग्राफ के अंदर, इस कर्व के अंदर कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं ये। तो मेन ये पॉइंट आप सब स्टूडेंट को क्लियर हुआ। जी जी सर, ये आपसे क्वेश्चन पूछना था कि ये क्या कहते हैं, ये हीट पर डिपेंड करता है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स? देखिए हमारे पास जो एडी करंट लॉसेस होते हैं, जो हिस्टैरिसीस हम बात अभी करेंगे इसके बाद, तो वो डिपेंड करता है कि जो एडी करंट होता है उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होता है, उससे कोर क्या होती है, हीट अप होती है। क्योंकि वो अभी हम इस पॉइंट पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कंप्लीट हमारा नेक्स्ट वीक टॉपिक है, उसके अंदर हम उसको कि कोर के अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके सर। जी जी 0 होगा सर। ये अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट का मतलब कि इसकी वैल्यू के जो चेंज होगा वो अप्रोक्सीमेट 0 के करीब होगा। एक्जैक्ट 0 नहीं होता कभी भी ये, लेकिन अप्रोक्सीमेट क्या होगा, इसके अंदर जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। या उसको हम कांस्टेंट का नाम भी दे सकते हैं। जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे ये, तो फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है, कोर क्या कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है ये। तो आई होप कि ये पॉइंट सब स्टूडेंट को ये ग्राफ क्लियर, क्योंकि ये ग्राफ क्लियर होगा तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास इस पे डिपेंड करेगी। तो अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो नाउ एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ देयर आर 3 रीजन्स ऑफ दिस कर्व। सो दिस इज द रीजन नंबर, लेट्स सपोज दिस इज द रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1 में क्या है कि हमारे पास जब करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स भी रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये। In let's suppose this is the region number 2. In region number 2, the change in flux is less than as compared to the region number 1. तो रीजन नंबर 2 के अंदर भी फ्लक्स के अंदर चेंज आ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो चेंज है वो कम हो रहा है एज कम्पेयर टू रीजन नंबर 1. सो लेट्स सपोज
this is the region number 3. So in region number 3, as you can see in this curve, the value of the flux is approximately constant. तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 रीजन है इस कर्व के लिए. तो ये जो रीजन नंबर 1 है ये this is the region number 2 and this is the region number 3. ये रीजन नंबर 1 भी क्या हो रहा है, फ्लक्स और करंट जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं फ्लक्स भी रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो इन रीजन नंबर 2 द चेंज इन फ्लक्स इज लेस देन एज कंपेयर्ड टू द रीजन नंबर 1 and in the region number 3 the value of the flux is approximately constant. इसके बाद हम फर्दर करंट इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा. ये इसलिए हमने करंट को इतना भी इंक्रीज नहीं करना कि कोर सैचुरेशन में हो, उसके बाद हमारे पास फर्दर क्योंकि इसके अंदर वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तो उस केस में करंट हम इंक्रीज भी करते जाएंगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. तो ये पॉइंट आपको यहाँ तक हर स्टूडेंट को अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए. आपको ये कर्व डिफाइन कैसे किया जाएंगे. सर इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा सर कोर पे अगर हम मुसलसल कंटिन्यूअसली सर इसको देते रहे, करंट देते रहे सर? अगर हम इसको कंटिन्यूअसली करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो वायर है बेसिकली ये जो हम नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर रहे हैं, एक वायर यूज करेंगे. सो हर वायर की क्या होती है, एक लिमिट होती है करंट की. तो अगर हम फर्दर करंट लेट्स सपोज द लिमिट ऑफ दिस वायर इज 1 एम्पीयर, अगर हम इसके अंदर 20 एम्पीयर करंट हम इंक्रीज करेंगे ये उस केस में क्या होगा, फ्लक्स के अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कोर के ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी है. तो जब फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लक्स प्रोड्यूस करना चाहिए. अगर करंट को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं फ्लक्स तो प्रोड्यूस हो चुका है, रीजन क्या हो चुका है, यहाँ पे फिल्ड अप हो चुका है. इसके बाद अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो वायर क्या होगी, हीट अप होना शुरू हो जाएगी. उससे क्या होगा, कॉपर लॉसेज इंक्रीज करेंगे ये. तो जब कॉपर लॉसेज इंक्रीज करेंगे इट मींस की एनर्जी क्या होगी यहाँ पे कंज्यूम होगी. तो वो क्या होंगे, बेसिकली लॉसेज इंक्रीज हो रहे होंगे. इसलिए हम फर्दर इंक्रीज नहीं करेंगे कि हमारे पास अब इसका कंप्लीटली कोर्स सर जी सर अगर ये कांस्टेंट जो हमारे पास जब हमारी कोर फिल्ड अप हो जाए तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे ज्यादा करें तो तब भी कोई असर नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि फ्लक्स में फ्लो करना है मीडियम के थ्रू. अगर हमारे पास फ्लक्स फिल्ड अप हो चुका है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करें डिक्रीज करें, उससे हमारे पास फर्दर इंक्रीज करने से क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा. जब करंट इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास इसमें तो कोई चेंज क्योंकि फ्लक्स के अंदर तो कोई चेंज, लेकिन इसके अंदर लॉसेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे. वायर क्या होगी, हीट अप होना शुरू हो जाएगी. इसलिए उसका इससे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और हमारे पास जो आउटपुट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. नहीं ठीक सर. एक्सक्यूज मी सर. जी सर इस केस में तो फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट जो होगा हमारे पास वो तो इसका एडवांटेज नहीं होगा सर अगर हम गैप बढ़ा दें सर उसके दरमियान. देखिए वो हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने फ्लक्स प्रोड्यूस करना है. जी सर. ठीक है, तो जब और हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया एक लिमिट तक, हम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के बाद अगर हम चाहते हैं फ्लक्स को फर्दर इंक्रीज करें तो उसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम कोर का जो एरिया है उसको इंक्रीज करें. पहले ही एक सेम कोर के अंदर हम फ्लक्स को इंक्रीज नहीं कर सकते. अगर हम चाहते हैं कि फ्लक्स लेट्स सपोज वैल्यू जहाँ पे 0.01 है, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू क्या हो 0.02 हो, तो हम क्या करेंगे कि इस कोर को रिप्लेस करेंगे. इस कोर का एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस कोर. तो फिर हम एक नई कोर डिजाइन करेंगे, उसके अंदर एरिया उसका ज्यादा करेंगे तो उस केस में क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी. अगर एक क्लासरूम में जैसा क्लासरूम में लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे 100 स्टूडेंट वहाँ पे बैठे तो इट मीन्स कि हमें रूम का एरिया क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा. तो एक उसका सोल्यूशन ये हो सकता है. ठीक है, अगर सेम कोर है तो फिर हम उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड द फ्लक्स. तो आई होप कि ये डिटेल के अंदर आप सब स्टूडेंट को क्लियर होगा कि इसके अंदर हमारे पास रीजन कौन कौन से, इसको हमने डिफाइन कैसे किया है. सो द रीजन नंबर 1, so as we know F is basically equal to N into I and F is also basically equal to flux into R. So the region number 1 of this core is called unsaturated region. Unsaturated region. इसकी definition में आपको लिखा दूंगा. So region in region number 1, as you can see in this curve, तो यहाँ पे हमारे पास करंट के इंक्रीज होने से फ्लक्स भी रैपिडली इंक्रीज करे. दोनों का रिलेशन क्या हो, लीनियर हो. करंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, फ्लक्स भी क्या आ रहा है उसी रेशो से इंक्रीज होता जा रहा है. तो उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड रीजन. इसको डेफिनेशन में आपको राइटिंग करा देता हूँ. ये जो रीजन नंबर 1 है यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली करंट भी इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स भी क्या कर रहा है, इसमें इक्वली क्या हो रहा है, उसी परसेंटेज से फ्लक्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है. जितने परसेंट हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं सेम परसेंटेज के अंदर फ्लक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, बेसिकली unsaturated region. So now as you can see in this curve, this is the region number 2.
रीजन नंबर 2 में क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन फ्लक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है या फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है बेसिकली वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड रीजन। तो इसको हम नाम देते हैं नी कर्व, नी ऑफ द कर्व। तो ये जो रीजन होगा इसको हम क्या नाम देंगे बेसिकली, नी ऑफ द कर्व। इस रीजन को हम नाम देते हैं, यहाँ पे करंट इंक्रीज करने से फ्लक्स इंक्रीज हो लेकिन ज्यादा रैपिडली इंक्रीज ना हो, इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कम हो बेसिकली एज कम्पेयर टू रीजन नंबर 1। सो दिस रीजन इज कॉल्ड नी ऑफ द कर्व। इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, नी ऑफ द कर्व। इन द लास्ट द रीजन नंबर 3, now as you can see in this curve in region number 3, when the value of the current will increase then the value of the flux remains constant। तो इसके अंदर जब हम करंट इंक्रीज करते जा रहे हैं तो फ्लक्स के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, फ्लक्स अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये कांस्टेंट है ये। तो इस रीजन को हम नाम देते हैं, यहाँ पे फ्लक्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो तो उसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड रीजन। सो दिस रीजन इज कॉल्ड सैचुरेटेड रीजन ऑफ द कर्व। सो दीज आर द 3 रीजन्स ऑफ द कर्व। द रीजन नंबर 1 इज द unsaturated region, the region number 2 is the knee of the Knee curve, of the curve. and the region number 3 is the saturated region। नॉर्मली जो हम प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ के अंदर जो हम कोर यूज करते हैं वो हमेशा जो ऑपरेट करती है वो नी ऑफ द कर्व इस रीजन के अंदर ऑपरेट कर रही होती है, कोर रीजन नंबर 2 के अंदर। तो इसकी रीजन हम डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड रिलेशन के अंदर हम कोई चीज को क्यों कोर को क्यों नहीं लेके जाते, उसकी रीजन क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे ये। तो प्रैक्टिकली जो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर जो हम कोर यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, ये उसकी जो ऑपरेशन होता है फ्लक्स हम कितना प्रोड्यूस करते हैं वहां पे रीजन नंबर 2 तक, नी ऑफ द कर्व तक क्या होता है फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या करते हैं रियल लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं। कभी भी कोर को हम सैचुरेशन के पॉइंट में यूज नहीं करते और ना ही हम इसको अनसैचुरेटेड में यूज करते हैं ये। तो इसके हम ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड में कोर को ऑपरेट क्यों नहीं करते, उसकी रीजन क्या होती है, ये इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे ये। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसी भी कोर को अगर अनसैचुरेटेड हम रीजन में हम ऑपरेट करें उसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं या उसका एडवांटेज क्या हो सकते हैं या उसके डिसएडवांटेज क्या है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ द अनसैचुरेटेड रीजन, नी ऑफ द कर्व एंड सैचुरेटेड रीजन। सो द डेफिनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड रीजन इज the region where flux changes very rapidly is called unsaturated region। As you can see in this diagram, at the start when the value of the magnetomotive force will increase then the flux will increase rapidly। तो जैसे जैसे करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स भी उसी बिहेवियर से क्या हो रहा है, उसी परसेंटेज में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ये। अगर हम इसको सिंपल डिफाइन करें, लेट्स सपोज दिस इज द, अगर यहाँ पे सपोज किया करंट की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पीयर है तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास सपोज किया 0.01 है। अगर जैसे जैसे करंट को लेट्स सपोज कि यहाँ पे करंट की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पीयर है ये, अगर 1 एम्पीयर में हमारे पास फ्लक्स 0.01 है तो 2 एम्पीयर में फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.0 डबल होनी चाहिए। करंट अगर डबल करें तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। अगर इसी सेम परसेंटेज करंट हम इंक्रीज करें तो सेम परसेंटेज के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड रीजन। आई होप कि आप इसकी बेसिक डेफिनेशन सब स्टूडेंट को क्लियर होगी कि अनसैचुरेटेड रीजन का मीनिंग क्या होता है। द रीजन वेयर फ्लक्स चेंजेस वेरी रैपिडली इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड रीजन। तो अगर इसकी डेफिनेशन आई होप कि सबको क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन इस डेफिनेशन के अंदर कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप डिस्कस कर सकती हैं। तो आई होप ये डायग्राम के थ्रू आपको सब स्टूडेंट को आई होप के क्लियर होगी। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द रीजन इज सैचुरेटेड रीजन। इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं नी ऑफ द कर्व। The saturated region is basically the region where the value of the flux remain constant। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे, the region in which the curve, वो रीजन यहाँ पे कर्व क्या होती है, बेसिकली फ्लैट होती है। यहाँ पे देखें कर्व बिल्कुल हमारे पास क्या है, ये इस पॉइंट देखें जो कर्व बेसिकली क्या है, फ्लैट है बेसिकली। द रीजन इन विच द कर्व, अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या, द कर्व फ्लैटन्स, बिल्कुल हमारे पास जो कर्व वो क्या हो, फ्लैट हो जाए उसमें, तो उस रीजन को हम क्या नाम देंगे, द रीजन इन विच द कर्व फ्लैटन्स आउट इज कॉल्ड सैचुरेटेड रीजन। तो वो रीजन यहाँ पे कर्व फ्लैट हो जाती है या उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड रीजन। नाउ एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम,
here as you can see, the curve of the flux is constant or flat. So this region is called saturated region. I hope the definition of the saturated region will be clear all of the students. If there is any confusion, you can discuss now. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि सैचुरेटेड रीजन की डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन कर लेंगे आप लोग ये? Yes, sir. Okay, now the third region is called knee of the curve. The third point is knee of the curve. Knee of the curve. So knee of the curve is basically the region between saturated and unsaturated region is called knee of the curve. तो अगर हम देखें डायग्राम के अंदर, तो जो हमारे पास सैचुरेटेड रीजन और अनसैचुरेटेड रीजन के दरमियान जो हमारे पास रीजन है, उसको हमने क्या नाम दिया? नी ऑफ द कर्व. इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द ट्रांजिशन रीजन बिटवीन द अनसैचुरेटेड रीजन एंड सैचुरेटेड रीजन. ये जो ट्रांजिशन रीजन है, यहाँ पे फ्लक्स के अंदर चेंज आ रहा है, वो कम आ रहा है बेसिकली. तो ये किसके दरमियान है? बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दरमियान जो हमारे पास रीजन है, इसको हमने क्या नाम दिया है? नी ऑफ द कर्व. तो इसको भी आप सिंपल अपने वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं. ये द ट्रांजिशन रीजन, ट्रांजिशन क्या हो रहा है बेसिकली कि अनसैचुरेटेड से हम कहां पे जा रहे हैं? सैचुरेटेड की तरफ. तो ये ट्रांजिशन हो रहा है इसके अंदर. द ट्रांजिशन रीजन किसके दरमियान है? ट्रांजिशन रीजन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड रीजन. किसके दरमियान आ रहा है ये? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड रीजन. तो ये हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दरमियान जो रीजन है, इसको हमने क्या नाम दिया? बेसिकली नी ऑफ द कर्व. तो आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि इसको डिफाइन अपने वर्ड में आप खुद भी कर सकते हैं, ये सिंपल वर्ड के अंदर, कि वो रीजन जो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स के अंदर जो चेंज हो वो कम हो. जब करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं, फ्लक्स के अंदर कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा. अगर इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू करें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास करंट है हमारे पास 4 एम्पेयर. सपोज किया 4 एम्पेयर पे जाके यहाँ पे जो हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेट्स सपोज 0.03 हो रहा है, सपोज कर लेते हैं. अब इसके बाद अगर करंट की वैल्यू सपोज हम करते हैं यहाँ पे 5 एम्पेयर करते हैं, उस केस में जो हमारे पास फ्लक्स है उसके अंदर भी चेंज सेम आना चाहिए. हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स है वो 0.04 नहीं होता है, इसकी वैल्यू लेट्स सपोज आती है 0.031 सपोज किया. तो आप देखिए 0.03 की जगह यहाँ पे जब करंट 1 एम्पेयर इंक्रीज करें, तो ये भी हमारे पास 1 टाइम क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. अगर इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है जब करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर वो चेंज सेम नहीं आता तो उस केस में हम रीजन को क्या नाम देंगे? नी ऑफ द कर्व. उसकी एग्जांपल ये, अगर लेट्स सपोज कि 1 एम्पेयर में वैल्यू 1 आ रही है, तो सपोज किया कि हमारे पास 1 एम्पेयर करंट पे वैल्यू क्या आ रही है? सपोज करें हम 1 आ रही है, तो 2 एम्पेयर में क्या होनी चाहिए? वैल्यू 2 होनी चाहिए. हम क्या देखते हैं कि वहां पे वैल्यू 2 नहीं आती, वहां पे सपोज किया हम देखते हैं वैल्यू क्या आ गई? 1.5 आ गई. तो ये जो चेंज आ रहा है, अब ये चेंज तो आ रहा है, लेकिन चेंज क्या हो गया? अब 2 आनी चाहिए, 2 की जगह वैल्यू क्या आ रही है? 1.5 आ रही है. तो ये चेंज हमारे पास कम आ रहा है. जैसे ये वो रीजन है यहाँ पे फ्लक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है वो क्या है? हमारे पास कम आ रहा है एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड रीजन. इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं? नी ऑफ द कर्व. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड द फ्लक्स. तो इसका रिलेशनशिप आप सब स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए. ये इसके अंदर रीजन कौन कौन से हैं, ये कर्व यहाँ से फ्लैट क्यों होती है, उसकी रीजन क्या होती है, ये भी आप सब स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए. ठीक है.